وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی سے پوچھا گیا۔ اب تک کا سب سے مشکل سوال یہودیوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد، فہم و فراست اور دانائی کی ایسی بلند و برتر صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے لوگوں کے نزدیک پیچیدہ اور ناقابل حل سمجھے جاتے تھے، وہی مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحوں میں حل فرما دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم و دانش کے مقام سے بخوبی واقف تھے، مگر نادان یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی طور پر شکست دے دیں تو مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ان کا چرچا ہوگا۔ ناظرین، اور اس یہودی جماعت نے منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گے، مگر قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرط مان بھی لے تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان پر قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ تورات کے سوالوں کے جواب تورات سے کیسے دے سکیں گے؟ ناظرین، اس جماعت کا سربراہ راسل جالود نامی شخص تھا جو اپنی قیادت میں یہودی علماء کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ راسل جالود بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم و فضل کے بہت چرچے سنے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرا کر فرمانے لگے، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ ناظرین، راسل جالود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے اور آپ کو ان سوالات کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر فرمانے لگے، میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ تم کیا سوال کرو گے اور تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودیوں نے کہا، ہاں، اگر ہمارے تمام سوالوں کے جواب ہمیں تورات کے مطابق مل گئے تو ہم یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے ہو چکے تھے، پورا مجمع خاموشی سے منتظر تھا۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالود نے مجمع کی طرف دیکھا اور تکبر بھرے لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودیوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اس لیے حضرت علی اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ کائنات میں ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا توقف فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو سنو، شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ناظرین، مجمع میں موجود سب لوگ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ یہودی بھی حیرت میں پڑ گئے، مگر راسل جالود نے دوسرا سوال کر دیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری تورات میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟
फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो उससे ये मालूम हुआ कि चाहे बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की हद, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाजरीन, रासिल जालूत अब थोड़ा घबरा गया, क्योंकि देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सवालों के जवाबात उसकी अपनी किताब से दे दिए थे। अब उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाजरीन, रासिल जालूत ने पहली दो सवालों में शिकस्त खाने के बाद अपना जाविया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवालात की बजाय तारीखी और साइंसी सवालात के तरफ रुख मोड़ा और बड़े तकब्बुर भरे अंदाज में बोला, ए अली, इस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम बोले, इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और रासिल जालूत ए मन से बेसाख्ता हाँ निकल आया। जब उसने कहा कि उसके दिल में ये ख्याल है कि वो चश्मे बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है, तब हजरत अली ने फरमाया, आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। नाजरीन, रासिल जालूत अब मजीद घबरा गया था। इस घबराहट में उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली मर्तबा उतारा गया? हजरत अली करमल्ला वजह करीम ने जवाब देने से पहले मुस्कुरा कर फरमाया, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वही होगा जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पहले तामीर हुआ था और हजरे अस्वद उसी वक्त आसमान से उतारा गया जब खाना काबा पहली मर्तबा तामीर हुआ। बस वही पहला पत्थर है जो आसमान से नाजिल हुआ था। नाजरीन, यहूदी अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दे, क्योंकि आपके हर जवाब में न सिर्फ इल्म की गहराई थी बल्कि मजबूत दलील भी थी। आप सिर्फ जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि उनकी इस्लाह भी फरमा रहे थे। अब की बार रासिल जालूत ने एक और सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिला तवक्कुफ फरमाया, अगर तुम अपने माह साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासिल जालूत ने पूछा, वो कैसे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता और कोई रात गुज़श्ता रात जैसी नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं। नाजरीन, रासिल जालूत जवाब सुनकर खामोश ना रह सका। इसने फौरन एक और सवाल दाग दिया, ए अली, जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है, तो क्या कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया, हाँ, सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि न उसके पास रूह है न जान। नाजरीन, ये जवाब सुनकर रासिल जालूत के चेहरे पर पसीना आ गया। इसने घबराहट में जल्दी से एक और सवाल किया, अच्छा ये बताइए, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक मर्तबा तो पड़ी थी मगर दोबारा कभी उस जगह नहीं पहुंच सकी? नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, वो जगह समंदर की है जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी। उस वक्त समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस काफले के गुजरने के दौरान सूरज की किरणें इस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की रोशनी वहां कभी दोबारा नहीं पहुंची। नाजरीन, ये जवाब सुनकर रासिल जालूत हैरान रह गया मगर खामोश न बैठा। उसने फौरन एक और सवाल किया, ए अली, ये बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती है और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, ये हमेशा हाजिर रहती है। लेकिन अगर तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहां हैं और कब आती हैं। यही दो चीजें हमेशा गायब रहती हैं। नाजरीन,
रासिल जालूत ने अब एक और सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम ने बिला तवक्कुफ फरमाया, वो मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, इसका खालिक खुद अल्लाह ताला है, और इसी असा के बारे में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खुद सवाल किया था, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, यानी ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। नाजरीन, रासिल जालूत ने एक बार फिर हैरत से सर झुका लिया, मगर फिर सवाल कर बैठा, ए अली, बैतुल्लाह का तवाफ तो जानदार करते हैं, मगर ये बताए कि वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक ऐसी बेजान चीज है जिसने तूफान के दौरान इस मकाम पर पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। नाजरीन, रासिल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेशुमार सवाल किए और हर सवाल का जवाब आपने बगैर किसी तवक्कुफ के निहायत दुरुस्त और मुदल्लल अंदाज में दिया। तब मजमा में बैठे एक यहूदी ने हैरत से कहा, हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच कर जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बगैर सोचे फौरन दे देते हैं। नाजरीन, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस यहूदी के सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर फरमाया, अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। यहूदी ने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो मेरे सवाल का जवाब फौरन दे दिया। यहूदी हैरान होकर बोला, ए अली, ये कैसी बात हुई, मुझे तो मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। इस पर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा कर फरमाने लगे, जैसे तुझे यकीन है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, वैसे ही मुझे ये सारा इल्म यकीनी तौर पर मालूम है। नाजरीन, यहूदी नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का वो इल्म है जो आम अक्लों की पहुंच से बाहर है। जब तमाम सवालात के जवाबात सच्चाई और दलील के साथ दे दिए गए तो रासिल जालूत समेत पूरी यहूदी जमात ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। नाजरीन, मनाक़िब अली में अलामा इब्ने जोजी लिखते हैं कि जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत की मसनद पर फाइज हुए तो एक मौके पर फरमाया करते थे, मैं उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगता हूं जब कोई मुश्किल मसला पेश आए और उसे हल करने के लिए अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद ना हो। अलामा इब्ने जोजी इस बात की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि एक बार कैसर रूम ने चंद निहायत मुश्किल सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजे। ये सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात रूम के बड़े बड़े उलमा और फलासफर भी ना दे सके थे। इनका मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि इनके दिलों में दीन के बारे में शक पैदा हो। चुनाचे मस्जिद नबवी में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक मजलिस जमा हुई। कैसर रूम का कासिद आया और खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, ये खत है बादशाह रूम कैसर बिन नय्यरुल असगर की तरफ से वक्त के खलीफा हजरत उमर बिन अल खत्ताब के नाम। मैंने तुम्हारे दीन और तुम्हारे इल्म को आजमाने के लिए चंद सवालात लिखे हैं, इनके जवाबात इनायत फरमाओ। नंबर 1, वो कौन सी चीज है जिसे खुदा ने तख्लीक नहीं किया। नंबर 2, वो कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में नहीं। नंबर 3, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला के पास नहीं। वो कौन सी चीज है जिसके सब बाल ही बाल है, वो हवा है। वो कौन सी चीज है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो आग है। वो कौन सी चीज है जिसके सिर्फ पांव ही पांव हैं, वो पानी है। और वो कौन सी चीज है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, वो सूरज है। वो कौन सा बंदा है जिसका खानदान नहीं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो कौन सी चीज है जो शिकमे मादर में नहीं है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्हें बगैर बाप के पैदा किया गया। वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस ले सकती है, वो मछली के जिस्म में मौजूद पानी है जो हरकत के बायस सांस लेता महसूस होता है। वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस नहीं ले सकती, वो मुर्दा जिस्म है। वो कौन सी चीज है जिसमें एक मर्द बापरवाज की नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। वो कौन सी चीज है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका, वो हजरत यूशा बिन नून की कौम के वक्त का वाकया है जब सूरज एक बार के लिए रुक गया था। वो कौन सा दरख्त है जिसके साये को तेज रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी उबूर नहीं कर सकता,
وہ جنت کا طوبہ درخت ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ وہ بھی طوبہ کا درخت ہے۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں سرسبز رہتا ہے۔ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال آئینہ ہے جس میں ایک دوسرے کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ جنت کے سیب سے حوریں بنائی جائیں گی لیکن ان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال شعلہ شمع ہے جس سے کئی دیے جلیں تو بھی شمع میں کمی نہیں آتی۔ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جوابات پڑھ کر فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی وہ 5 یہ ہے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، وہ دریائے نیل کی سرزمین پر تھا جہاں سورج ایک بار چمکا۔ وہ جگہ وہی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ درخت جس کے سایہ کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر محل تک پہنچتی ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرن ہر گھر تک پہنچتی ہے اور تمام زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا، وہ وہی درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنے نبی کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتنوں میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال دنیا میں مرغے کے انڈے سے دی جا سکتی ہے جس میں سفید اور زرد دونوں حصے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ جنت کا سیب جب توڑا جائے گا تو اس سے حور برآمد ہوگی مگر سیب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دنیا میں سیب سے نکلنے والے کیڑے کی طرح ہے جو نکلتا ہے مگر سیب اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں صرف مومنوں کو عطا کی جائے گی، وہ کھجور ہے۔ دنیا میں مومن اور کافر دونوں اسے کھاتے ہیں مگر آخرت میں یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ جب بادشاہ روم کو یہ خط ملا اور اس نے جواب پڑھا تو کہا، میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول ہی دے سکتے تھے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ یہ جوابات کس عالی ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے ہیں، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کردہ خط مل گیا ہے، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہے اور رسالت کے قیمتی خزانے کے امین ہیں۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی، لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے۔ یہی روح دراصل ہر چیز میں زندگی کا سبب ہے اور ہر روح جاندار کے پاس ایک مقررہ مدت تک بطور امانت رہتی ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے
तो खुदा उसे वापस अपने पास बुला लेता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। एक दिन का वाकया है कि दो औरतें एक बच्चे को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुईं। दोनों औरतें इस बच्चे पर अपना हक जताने लगीं। एक कहती थी ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी ये मेरा है। दोनों की आवाजें बुलंद हो गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों को खामोश कराया और फरमाया कि अगर तुम दोनों सच कह रही हो तो फैसला करना बहुत मुश्किल है। फिर आपने एक गुलाम को बुलाया और फरमाया एक तलवार लाओ। गुलाम तलवार ले आया तो आपने फरमाया अब इस बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दो ताकि दोनों को आधा आधा मिल जाए। यह सुनकर एक औरत चुप रही, मगर दूसरी औरत फौरन बोल उठी कि नहीं नहीं मेरे मौला, बच्चे को मत काटो, ये बच्चा उस औरत को दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया बच्चा उसी औरत का है जिसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, क्योंकि हकीकी मां कभी अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचने देती। एक और वाकया है कि एक शख्स ने दूसरे पर चोरी का था, इल्जाम लगाया और दोनों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में पेश हुए। इल्जाम लगाने वाला कहने लगा मौला, उसने मेरी ऊंटनी चुरा ली है। हजरत अली ने चोर से पूछा तुम क्या कहते हो? वो बोला मौला, ये ऊंटनी मेरी है, मैंने उसे पाला पोसा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया अच्छा, अगर ये ऊंटनी तुम्हारी है तो बताओ इसकी दम कितनी है और इसके दांत कितने हैं? चोर घबरा गया और कुछ न बता सका। हजरत अली ने ऊंटनी के मालिक से पूछा, वो फौरन दुरुस्त जवाब दे गया। तो आपने फरमाया कि ऊंटनी उसी की है, क्योंकि मालिक अपनी चीज के हर हिस्से से वाकिफ होता है। एक दिन दो आदमी एक ही जरखेज जमीन के बारे में झगड़ने लगे। दोनों कह रहे थे जमीन हमारी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया जमीन गवाही देगी। फिर आपने जमीन पर एक छड़ी मारी और फरमाया ए जमीन, बता तेरा मालिक कौन है? अचानक एक आवाज आई, ए अली, मेरा मालिक वो शख्स है जो सच पर कायम है और जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो ही मेरा असल मालिक है। ये सुनकर दूसरा शख्स हैरान रह गया और चुप हो गया। एक बार एक शख्स ने हजरत अली से पूछा कि मौला, एक औरत ने निकाह के बाद मेहर अदा नहीं किया, शौहर फौत हो गया, अब उसका हक क्या है? हजरत अली ने फरमाया औरत को पहले मेहर देना लाजिम है। अगर शौहर के तरके में माल मौजूद है तो मेहर अदा किया जाएगा, फिर विरासत तकसीम होगी, क्योंकि मेहर औरत का कर्ज है और कर्ज पहले अदा होता है। एक और मौका पर एक शख्स अपने बेटे को कत्ल करने के इल्जाम में पकड़ा गया। जब मामला हजरत अली के सामने पेश हुआ तो आपने फरमाया कि वालिद अगर बेटे को कसास में कत्ल करे तो सजा होगी, मगर अगर वो उसे किसी शरी हद के सबब कत्ल करे, जैसे वो दीन से फिर गया हो या जना करके इर्तिदाद इख्तियार कर ले, तो सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि शरीयत के मुताबिक फैसला देना अल्लाह का हुक्म है। एक दिन बाजार में एक शख्स खरबूजे बेच रहा था। उसने एक खरबूजा एक शख्स को दिया, वो खरबूजा कड़वा निकला। खरीदार ने वापस कर दिया, मगर बेचने वाले ने लेने से इनकार किया। दोनों हजरत अली के पास पहुंचे। आपने फरमाया अगर खरबूजा बेचने वाले ने कहा था कि मीठा है तो उसे वापस लेना वाजिब है, क्योंकि उसने गलत बयानी की, और अगर उसने सिर्फ कहा था कि यह खरबूजा है तो खरीदार पर लाजिम है कि वो सब्र करे, क्योंकि उसने खुद अपनी पसंद से खरीदा है। एक दिन एक यहूदी ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि तुम लोग सब बराबर हो, लेकिन तुम अपने आप को दूसरों से अफजल समझते हो। हजरत अली ने फरमाया बराबरी ईमान में है, ना कि आमाल में। जैसे एक चिराग से हजारों चिराग जलाए जाएं तो असल रोशनी एक ही से निकलती है, लेकिन हर चिराग की रोशनी अपनी ताकत के मुताबिक होगी। एक और वाकया में एक औरत पर चोरी का इल्जाम लगा। जब सबूत पेश हुए तो आपने फरमाया अगर यह औरत वाकई चोरी की मुर्तकिब हुई है तो सजा जरूर मिलेगी, मगर पहले ये देखो कि क्या ये भूखी थी, क्या उसने मजबूरी में चोरी की है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि बैतुल माल से मदद दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम अदल के साथ रहमत का दीन है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये तमाम फैसले अदल, अक्ल, इल्म और रहमत के इम्तिजाज का ऐसा हसीन नमूना है जो रहती दुनिया तक काजियों और हाकिमों के लिए एक मशले राह है। एक दिन दो कबीले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए। दोनों के दरमियान एक कुनवे का झगड़ा था। फरमाया दोनों अपनी अपनी दलील पेश करो।
पहले कबीले ने कहा, हम इस कुएं से हमेशा पानी लेते रहे थे। दूसरा कहने लगा, हमने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई थी। हजरत अली ने फरमाया कि अगर ये कुआं तुम्हारा होता तो तुमने इसके गिर्द दीवार खड़ी करके दूसरे को पानी लेने से क्यों न रोका। ये सुनकर वो कबीला खामोश हो गया। आपने फैसला सुनाया कि कुआं दोनों के दरमियान मुश्तरक है और कोई भी फरीक दूसरे को पानी लेने से नहीं रोक सकता। एक दिन एक शख्स ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी का दरख्त उसके सहन में झुक गया है और उसके फल उसके घर में गिर जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त के मालिक को बुलाया और फरमाया, तुम अपने दरख्त की शाखें उसके घर से हटा लो ताकि उसको तकलीफ ना हो। दरख्त के मालिक ने इनकार किया तो हजरत अली ने फरमाया, अगर तुमने दरख्त की शाखें ना हटाएं तो मैं दरख्त काट दूंगा, क्योंकि किसी का फायदा दूसरे के नुकसान से नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही दरख्त के मालिक ने शर्मिंदा होकर शाखें काट दी। एक और मर्तबा एक औरत ने आकर अर्ज किया, मौला, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन इद्दत के दौरान मुझ पर खर्च नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इद्दत के अय्याम में औरत पर खर्च मर्द के जिम्मे है, चाहे वो तलाक बाइन हो या रजाई, क्योंकि उस मुद्दत में औरत अल्लाह के हुक्म से मर्द के घर से निकाले जाने की मजाज नहीं। एक बार एक शख्स ने दूसरे से कर्ज लिया और बाद में इनकार कर दिया। मामला हजरत अली के पास पहुंचा। आपने फरमाया, कर्ज देने वाला अगर कोई तहरीर या गवाह नहीं रखता तो कसम कर्ज लेने वाला खाएगा। कर्ज देने वाला बोला, मौला, अगर ये झूठी कसम खा गया तो? आपने फरमाया, फिर अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल होगा, क्योंकि झूठी कसम खाकर दुनिया बचाई जा सकती है मगर आखिरत नहीं। एक दिन एक गुलाम ने अपने आका पर जुल्म की शिकायत की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों को बुलाकर फरमाया, गुलाम भी इंसान है और अल्लाह ने तुम्हें उन पर फजीलत इसलिए दी है ताकि तुम अदल करो, ना कि उन पर जुल्म। एक शख्स ने कहा, मौला, ये मेरा गुलाम मेरा हुक्म नहीं मानता। आपने फरमाया, अगर तुम्हारा गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करता है तो सोचो तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया है। अदल करो तो इताअत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। एक दिन दो बच्चे खेल रहे थे। एक दूसरे को पत्थर लगा बैठा और वो जाँ बहक हो गया। मामला हजरत अली के पास आया। आपने फरमाया कि उस बच्चे पर किसास लागू नहीं होगा, क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन दिया अदा की जाएगी जो उसके घर वालों के माल से नहीं बल्कि बैतुल माल से दी जाएगी, क्योंकि इस्लाम मासूमों के लिए सजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहता है। एक मर्तबा एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मेरा घोड़ा तुम्हारे पास अमानत था, अब वापस नहीं कर रहे हो। वो बोला, घोड़ा मर गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अगर घोड़ा मर गया तो उसकी खाल कहाँ है, क्योंकि खाल कभी गायब नहीं होती। वो शख्स चुप हो गया और एतराफ कर लिया कि उसने झूठ बोला था। आपने फरमाया, अमानत में खयानत सबसे बड़ा गुनाह है। एक और दिन एक शख्स ने कहा, मौला, मेरा पड़ोसी रात को चिराग जलाकर बैठता है, उसकी रोशनी मेरे घर में आती है और मेरी नींद खराब हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम्हें रोशनी से तकलीफ है तो दीवार ऊंची कर लो, क्योंकि दूसरों के अमल से अपनी राहत छीनना जुल्म है। एक बार एक शख्स ने पूछा, मौला, हक और बातिल में क्या फर्क है? आपने फरमाया, 4 उंगलियों का फर्क है। वो बोला, कैसे? आपने फरमाया, जो कुछ तुम अपनी आंखों से देखो वो हक है, और जो सिर्फ कानों से सुनो वो बातिल भी हो सकता है। एक दिन एक शख्स ने कहा, मौला, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपने फरमाया, उसका अपना गुस्सा, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो अक्ल उससे जुदा हो जाती है, और जब अक्ल जुदा हो जाए तो शैतान काबिज हो जाता है। एक और मौका पर एक औरत ने कहा, मौला, मेरे शौहर ने मुझे कसम देकर छोड़ दिया कि अगर मैंने किसी से बात की तो तलाक हो जाएगी, और मेरे वालिद बीमार हैं, मैं उनसे बात कैसे करूं? आपने फरमाया, अपने वालिद से सलामती के कलिमात लिखकर बात करो, क्योंकि इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत को मुकद्दम रखा है, और तुम्हारा शौहर भी शरअन तुम्हें ऐसी कसम से रोकने का हक नहीं रखता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि इंसानियत के सबक भी देते हैं। उनमें अदल के साथ हिकमत, इल्म, हुल्म और रहम का इम्तिजाज ऐसा है कि हर फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता
اور ہر مظلوم کے دل میں سکون اتر جاتا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔